Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Professor Ishtiaq Ahmed. In this video we will discuss about geography of Pakistan in detail. It is a very important topic for students of intergraduation, master level, CSS, PMS, for every field because at graduation level Pakistan study is a compulsory subject. So this is a subject topic of Pakistan studies and very important topic. So let's start today's lecture. Introduction. First of all, this is introduction of Pakistan. Pakistan came into being on 14th August 1947. Total area of Pakistan is 7,96,096 square kilometer. 97% of population is Muslim, while 3% comprised of minorities. Languages Urdu, Punjabi, Sindhi, Balochi, Pashto, Saraiki, Hindko, Persian and English are spoken by the people of Pakistan. Now, geostrategic position. Pakistan is surrounded by many countries. India is in the east, China is in the north, Iran is in the west, Afghanistan in northwest, and Arabian Sea is in the south of Pakistan. Adjoining borders. Adjoining border with Afghanistan is also called Durand Line, which was demarcated in 1893 by Sir Durand. That's why it's called Durand Line. Its total length is 2240 kilometer, 2240 kilometer. The length of Pak-China border is 510 kilometer, and Pakistan is sharing a border with India 2910 kilometer. Pakistan has a shared border with Iran 912 kilometer, and total length of coastal line of Pakistan is 1100 kilometer. So for some physical features of Pakistan. Pakistan has divided into three major parts: mountain ranges, plateau and plains. First of all, we will discuss about mountain ranges. Mountain ranges has been further divided into three categories: northern mountain ranges, central mountain ranges and western mountain ranges. Northern, in this map, this is a map of Pakistan in which three mountain ranges have been described. First of all, northern ranges which are on the border of China and Pakistan. Western ranges are on the border of Afghanistan, Iran and Pakistan, and central ranges which are on the border of Punjab and KP provinces. जो सेंटर में सेंट्रल रेंजेस हैं, ये दरमियान का हिस्सा जो सेंटर में है बिल्कुल पाकिस्तान के, इस वजह से उनको सेंट्रल माउंटेन रेंजेस कहते हैं. नॉर्थ वाली को नॉर्दर्न रेंजेस कहते हैं और वेस्ट में जो है उनको वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस का नाम दिया गया है. अब इनको फर्दर हम डिस्क्राइब करते हैं कैटेगरीज को. नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस को फर्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें सब हिमालयन रेंजेस है, लेसर हिमालयन रेंजेस है, द ग्रेटर हिमालयन रेंजेस है, क्रॉकरम रेंजेस है, हिंदू कश माउंटेन्स है, माउंटेन्स ऑफ सवात एंड चित्राल है. इसमें सब हिमालयन रेंजेस, इट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ मरी हिल्स ऑफ पब्बी एंड हजारा आर इन दिस माउंटेन रेंजेस. इट इज आल्सो कॉल्ड शवालिक हिल्स. जो पब्बी और हज़ारा है, मरी के साउथ में जो रीजन है, हज़ारा रीजन जिसको हम कहते हैं, ये जो है इसको सब हिमालयन रेंजेस कहा जाता है. इनको शवालिक हिल्स भी कहते हैं. लेसर हिमालयन, इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ शवालिक हिल्स. मरी, अयूबिया, नथिया गली आर द फेमस पॉइंट्स ऑफ दीज रेंजेस. पीर पंजाल इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ दीज रेंजेस. लेसर हिमालयन रेंजेस जो हैं ये बेसिकली मरी की, अयूबिया, नथिया गली, गलियात, ये सारी जो हैं ये लेसर हिमालयन रेंजेस इनको कहते हैं. और ये पीर पंजाल जो है, इनकी हाईएस्ट पीक का नाम पीर पंजाल रखा गया है. ये लेसर हिमालयन है, ये शवालिक हिल के नॉर्थ में है. देखिए, अगर आपने इनको कहना मरी के साउथ में आप देखेंगे तो हिमालयन रेंजेस हैं साउथ ऑफ मरी, और नीचे आप देखेंगे लेसर हिमालयन तो उसके नॉर्थ में शवालिक हिल्स, या वो जो हिल्स है पब्बी और हज़ारा की, उनके नॉर्थ में जो है वो लेसर हिमालयन उसको डिस्क्राइब किया गया है या डिमार्केटेड किया गया है. द ग्रेटर हिमालयन रेंजेस, दीज आर द हाईएस्ट हिल्स ऑफ द वर्ल्ड. देयर आर मैनी ग्लेशियर्स इन दिस रेंज. नांगा पर्वत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दीज रेंजेस. ग्रेटर हिमालयन, इससे जो आगे की पहाड़ियां हैं उनको हम कहते हैं कि स्कर्दू वाली साइड की है जो, इसको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालयन
रेंजेस, जहाँ पर नांगा पर्वत है, हाईएस्ट पीक है इस रेंज की। इसके बाद आता है जी कराकोरम रेंजेस। इट इज़ लोकेटेड इन द कश्मीर एंड गिलगित विद द बॉर्डर ऑफ चाइना। अब गिलगित बल्तिस्तान की जो पहाड़ियाँ जो कराकोरम हाईवे के साथ साथ है, उसको हम कहते हैं कराकोरम रेंजेस। जो दुनिया की सेकंड बड़ी पीक है केटू जिसको कहते हैं, और केटू को गॉडविन आस्टन भी कहते हैं, वो कराकोरम रेंजेस के अंदर लोकेटेड है। द हाइट ऑफ केटू इज 8611 मीटर्स। मीटर्स और फीट में याद रखना है आपने हमेशा, पहाड़ों की जो हाइट है वो मीटर्स में जो है वो लिखी जाती है। कराकोरम हाईवे इज आल्सो लोकेटेड इन दीज रेंजेस दैट लिंक्स पाकिस्तान विद चाइना। पाकिस्तान का जो चाइना के साथ लिंक है और वो जो रास्ता है वो इसी पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है, जिसको कराकोरम हाईवे का नाम दिया गया है। और ये वर्ल्ड्स 8th वंडर में आता है कि इतनी मुश्किल पहाड़ों के अंदर काट के सड़क बनाई है, जो कि नामुमकिन था और पाकिस्तान और चाइना ने इसको मुमकिन कर दिखाया। Hindu Kush Mountains. It is located in the northwest of Pakistan. The major mountains of this range are located in Afghanistan. The highest peak of these mountains is Turch Mir. हिंदू कुश माउंटेन्स का ज़्यादातर इलाका जो है ये नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है, और इसकी ज़्यादातर पहाड़ियाँ अफगानिस्तान में। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको तुर्च मीर कहते हैं। माउंटेन्स ऑफ सवात एंड चित्राल। दीज माउंटेन्स आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ हिंदू कुश माउंटेन्स। अब ये जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ है उसके साउथ में जो है वो पहाड़ियाँ सवात और चित्राल की हैं। लुआरी टनल एक टनल है जो इन पहाड़ों के अंदर है, जो पेशावर को चित्राल के साथ कनेक्ट करती है। मेजर रिवर जो है ये सवात रिवर है, पंचकोड़ा रिवर है, चित्राल है, ये इस रीजन के मेजर दरिया हैं। अब सवात रिवर जो है ये बेसिकली दरिया सवात कलाम ग्लेशियर से गुजरता हुआ, सवात मंगोरा से गुजरता हुआ चक दरा के करीब, फिर वहाँ से अटक के करीब जो है ये दरिया सिंध में गिरता है। पंचकोड़ा रिवर बेसिकली ये चित्राल की पहाड़ियों से निकलता है, फिर ये कुमराट वैली जो है कोहिस्तान वैली वहाँ से गुजरता हुआ ये इसके लोअर दी अपर दी सड़क के साथ साथ फिर ये आके दरिया सवात में गिरता है चकदरा से थोड़ा सा आगे करके। और चित्राल जो दरिया है ये दरिया चित्राल की पहाड़ियों से निकल फिर अफगानिस्तान जाता है। अफगानिस्तान से जब पाकिस्तान में एंटर होता है तो ये दरिया काबल बन जाता है और ये भी इंडस वैली में इंडस रिवर में आके गिरता है। तो यहाँ सवाल और चित्राल की पहाड़ियाँ जो हैं ये जो है इनको माउंटेन्स ऑफ सवात और चित्राल कहते हैं। ये बड़ी ही मतलब टूरिस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ इनके अंदर। और चित्राल जो है वो शहर उनके अंदर वहाँ कैलाश वैली भी है जहाँ चिलम जोशी फेस्टिवल होता है, बड़े खूबसूरत इलाके हैं और ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। नेक्स्ट है जी सेंट्रल माउंटेन रेंजेस। सेंट्रल माउंटेन रेंजेस के अंदर जो दरमियान में मैप के आपको दिखाया जो पाकिस्तान के अंदर हैं पंजाब और केपी के बॉर्डर के ऊपर, उनको कहते हैं पहली जो एरिया है उसको कहते हैं कोहिस्तान नमक। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पोठोहार प्लेटू बिटवीन रिवर सिंध एंड जेहलम। Kesar is the beautiful place of these ranges. There are reservoirs of coal, salt and chromites are found in this range. ये जो हैं बेसिकली कोहिस्तान नमक, ये बेसिकली जेहलम से शुरू होता हुआ फिर आगे जनाब ये जो पिंडदादन खान है, जेहलम की तहसील है, चकवाल है, फिर आगे मियाँ वाली है, खुशाब है, ये इस एरिए को सारा सेंटर में जो है बॉर्डर के ऊपर जो है पंजाब और केपी के बॉर्डर के ऊपर ये जो इसको कहते हैं कोहिस्तान नमक। यहाँ दुनिया की सेकंड हाईएस्ट जो बिगेस्ट साल्ट माइन जिसको कहते हैं खेवड़ा माइन वो यहाँ पे पाई जाती है इसी के अंदर। और ये दरियाए सिंध और जेहलम के दरमियान वाला पट्टी है, बेसिकली बेल्ट है, तो इसको हम जो है वो कोहिस्तान नमक कहते हैं। यहाँ काफ़ी मिकदार में कोल साल्ट के जो क्रोमाइट के ज़खायर पाए जाते हैं। और ये जो है केसर इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस जो है सोन्स केसर वैली जो है ये बड़ी खूबसूरत है जो कि मियाँ वाली खुशाब के से आगे है इस रीजन की। इसके बाद आता है जी कोहे सुलेमान। इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ रिवर गोमल। तख्त सुलेमान इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज। इट इज़ लोकेटेड इन गोमल रिवर जो है उसको उस इलाके को जो है वो कोहिस्तान सुलेमान कहते हैं। तख्त सुलेमान इस इलाके की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और ये नॉर्थ और साउथ जो है वो इलाका जो गोमल रिवर, ये बेसिकली हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान के जो मेजर पहाड़ है जो गोमल रिवर के साथ साथ चलते हैं उसको कोहिस्तान सुलेमान कहते हैं, कोहे सुलेमान। कोहे कीर्थर, इट इज़ इन द साउथ ऑफ कोहे सुलेमान एंड इन द वेस्ट ऑफ सिंध रिवर कोहे कीर्थर इज लोकेटेड। देयर आर लो हाइटेड पीक्स।
ये जो सिंध के और बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पहाड़ है ना, उनको बेसिकली कोहे सुलेमान कहते, कोहे कीर्थर कहते हैं। ये साउथ ऑफ कोहे सुलेमान है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा हाइट की पहाड़ियाँ नहीं है, लो हाइटेड पीक्स है। इस इलाके को कोहे कीर्थर कहते हैं। नाउ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस में कौन सी हैं जी? कोहे सफ़ेद है, माउंटेन्स ऑफ वजीरिस्तान है, माउंटेन्स ऑफ टोबा काकड़ है, माउंटेन्स ऑफ चागी एंड रास्को है, माउंटेन्स ऑफ सिहान है, माउंटेन्स ऑफ मकरान है। ये बेसिकली पहाड़ों को ना इलाकों के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जिस तरह जिस इलाका शहर वहाँ पे है, कोई कस्बा है, कोई टाउन है, उसी हिसाब से उस रीजन का नाम जो है वो उस इलाके शहर की बिना पे रख दिया गया। अब कोहे सफ़ेद, इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ रिवर काबुल। काबुल के साउथ में जो है वो कोहे सफ़ेद है। दरिया काबुल, मैंने आपको बताया था कि ये चित्राल जो रिवर है ये अफ़गानिस्तान में एंटर होता है पाकिस्तान से, फिर वहाँ से जब दोबारा पाकिस्तान में एंटर होता है तो ये रिवर काबल दरियाए काबल बन जाता है। इसके साउथ में जो इलाका है, पहाड़ी इलाका है, उसको कोहे सफ़ेद कहते हैं। माउंटेन्स ऑफ वजीरिस्तान, कोहे सफ़ेद से आगे अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो उसको, उस इलाके को, उसका नाम भी वजीरिस्तान है, वादी है वजीरिस्तान की, जो पाकिस्तान का इलाका है। इट इज़ स्प्रेड विद द पाक अफगान बॉर्डर, अफगानिस्तान के साथ ये एजेंसी है बेसिकली एक वजीरिस्तान की, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान। तो वहाँ पे ये पहाड़ी इलाका है। टोची एंड गोमल पासेस इन्हीं माउंटेन रेंजेस के अंदर है जो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करते हैं। माउंटेन्स ऑफ टोबा काकड़, अब टोबा काकड़ की इलाका जो है ये भी उनकी एक पहाड़ी इलाका है, सिलसिला है, और वहाँ पे जो है वो इलाके का नाम है। तो ये वजीरिस्तान के साउथ में जो है, वजीरिस्तान के अगर साउथ में जाएं तो जो पहाड़ी इलाका है उसको टोबा काकड़ कहते हैं। माउंटेन्स ऑफ चागी एंड रास्को, इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान एंड इन द साउथ ऑफ चागी हिल्स रास्को हिल्स आर लोकेटेड। रास्को और चागी पाकिस्तान के बिल्कुल साउथ में अगर हम देखें तो उसमें जो है वो चागी हिल्स हैं, और चागी हिल्स के साउथ में अगर देखें तो रास्को हिल्स है। चागी का मुकाम बड़ा फेमस है, यहाँ पे पाकिस्तान ने अपने एटॉमिक टेस्ट किए थे, न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1998 में। तो वो चागी की पहाड़ियाँ थी जो कि बलूचिस्तान के अंदर वाक़ हैं। ये जो वेस्टर्न माउंटेन रेंज जो हम पढ़ रहे हैं, इनके ज़्यादातर जो ये सारे बलूचिस्तान में इलाके हैं। सिहान माउंटेन, अब सिहान भी इलाके का नाम है, उसी वजह से उस जो पहाड़ी सिलसिला है उसको सिहान माउंटेन कहा गया। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ रास्को एंड इन प्रोविंस बलूचिस्तान। मकरान भी एक इलाके का नाम है बलूचिस्तान के अंदर, तो उसकी जो पहाड़ी है मुकाम, उसको मकरान का पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। नाउ प्लेटू, there are two plateaus in Pakistan, पोठोहार प्लेटू एंड बलूचिस्तान प्लेटू। प्लेटू किसे कहते हैं? बेसिकली एक ऐसे इलाके को कहते हैं जो ना हमवार हो, जहाँ पे पहाड़ी इलाका भी हो, मैदानी इलाका दोनों मिलते हों, और उसको कहते हैं प्लेटू। तो पोठोहार प्लेटू जो हमने पीछे पढ़ा है, हम डिटेल में इसको जो है वेस्ट सेंट्रल माउंटेन रेंजेस के अंदर कोहिस्तान नमक जो हम पढ़ रहे हैं वही बेसिकली पोठोहार प्लेटू है। इट इज़ लोकेटेड इन द मिडल ऑफ झेलम एंड इंडस रिवर, झेलम और सिंध के दरमियान में जो इलाका उसे पोठोहार प्लेटू कहते हैं। ह्यूज रिजर्वायर्स ऑफ जिप्सम कोल, क्रोमाइट, साल्ट एंड मिनरल ऑयल आर फाउंड इन दिस एरिया, जिसमें मैंने आपको बताया झेलम है, खुशाब है, मियाँ वाली है, ये सारे इलाके जो हैं ये पोठोहार प्लेटू के अंदर आते हैं। और यहाँ पे काफ़ी रिजर्वायर्स हैं नमक के, साल्ट, जिप्सम कोल, क्रोमाइट। बलूचिस्तान प्लेटू, बलूचिस्तान प्लेटू इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ सुलेमान रेंज एंड कीर्थर रेंज। कोहे सुलेमान और कीर्थर रेंज के जो वेस्ट में इलाका है उसे बलूचिस्तान प्लेटू कहते हैं। ये बेसिकली सेंट्रल बनता है, बलूचिस्तान का सेंटर बनता है। यहाँ के सिब्बी वहाँ का बड़ा मशहूर इलाका है, जैकबाबाद है, सिब्बी है, ये बहुत गर्म इलाके हैं। यहाँ पे लो रेनफॉल होता है बलूचिस्तान प्लेटू में, और ये अनइवन और बैरन ज़मीन है, इसकी बंजर ज़मीन है, ना हमवार है, यहाँ पे काश्त नहीं होती। ठीक है। द मोस्ट फेमस लेक हामून मशकील इज़ आल्सो इन दिस एरिया। ये मीठे पानी की एक झील है हामून मशकील, जो कि कुदरती है और इस इलाके में पाई जाती है, जो वहाँ के लोगों को पानी मुहैया करती है पीने के लिए। ये बड़ी मशहूर झील जो है ये यहाँ पे बलूचिस्तान प्लेटू में है। नेक्स्ट प्लेन, मैदान कौन कौन से हैं जी? दिस प्लेन एक्सटेंड्स फ्रॉम साउथ ऑफ पोठोहार प्लेटू टू मिठनकोट इन द पंजाब प्रोविंस। द एरिया above मिठनकोट टुवर्ड पंजाब इज कॉल्ड अपर इंडस प्लेन एंड द लोअर एरिया फ्रॉम मिठनकोट टुवर्ड सिंध इज कॉल्ड लोअर इंडस प्लेन। दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। मिठनकोट एक ऐसा मुकाम है जहाँ पे दरियाए सिंध
बेसिकली पीछे से जितने दरिया आते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक बन जाता है इंडस रिवर। उससे जो ऊपर वाला इलाका है जहाँ पे 5 दरिया सराब करते हैं पंजाब के मैदान को, उसको कहते हैं अपर इंडस प्लेन। और जो मिठन कोट से नीचे वाला सिंध का इलाका है उसे हम कहते हैं लोअर इंडस प्लेन। तो अपर इंडस प्लेन जो है इट इज कॉल्ड लैंड ऑफ 5 रिवर्स, जो पंजाब में है बेसिकली, विच फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इरिगेट द लैंड विच प्रोड्यूस मैनी क्रॉप्स। यहाँ पे बहुत सी क्रॉप्स है, गन्ना है, चावल है, कपास है, जो है वो, इसके अलावा तंबाकू है, हर तरह की फसल होती है अपर इंडस प्लेन के अंदर। तो ये बेसिकली पंजाब का इलाका है जो 5 दरिया जिसको सराब करते हैं। अब जो लोअर इंडस प्लेन है जहाँ पे इंडस रिवर एक बच जाता है, पांचों उसमें इकट्ठे हो जाते हैं, उसको वो फिर एक चलता है और बहेरा अरब में जाके गिरता है, उसको हम कहते हैं लोअर इंडस प्लेन। लोअर इंडस प्लेन इंडस रिवर फ्लोज इन दिस एरिया एज अ ह्यूज रिवर एंड इरिगेट इट्स लैंड विच प्रोड्यूस मेजर क्रॉप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सिंध के जो लोअर मैदान है, जो सिंध का इलाका है बेसिकली, वो फ्रूट्स जिसमें बनाना है, मैंगो है, खजूर है, इस तरह की जो फ्रूट्स हैं और फसलें हैं, गन्ना है, कपास है, वीट है, ये फसलें वहाँ पे, वेजिटेबल, सारी वेजिटेबल जो है वो सिंध में होती है तकरीबन। तो ये लोअर इंडस प्लेन, ये बहुत इंडस प्लेन जो है दोनों लोअर और अपर, ये दोनों बड़े जरखेज है और यहाँ पे खेती बाड़ी के हवाले से बड़े मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर। ग्लेशियर्स, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से मशहूर ग्लेशियर्स हैं? सियाचिन, बालतोरो, ब्याफू, हिस्पर, रीमो एंड बातोरा आर अमंग द ह्यूज ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत बड़े ग्लेशियर्स हैं जो गर्मियों में जिनके ऊपर बर्फ़ पिघलती है और दरियाओं में पानी आता है। सैलाब भी अक्सर ही आया रहता है क्योंकि बाज़ औक़ात बारिशें भी होती है पहाड़ों के ऊपर, और जो ग्लेशियर्स हैं हमारे वो भी बड़ी तेज़ी से पिघलते हैं, तो दरियाओं में काफ़ी पानी आता है गर्मियों में। जबकि सर्दियों में सारा साल इनके ऊपर बर्फ़बारी होती रहती है, तो ये और बड़े होते रहते हैं, ज़्यादा जो है वो ग्लेशियर्स बड़े बच जाते हैं। तो ये फेमस ग्लेशियर्स है पाकिस्तान के अंदर। शायद लोग जो है समझते हैं वो सियाचिन को ही समझते हैं एक बड़ा, लेकिन बालतोरो, ब्याफो, हिस्पर, रिमू, बतौरा ये भी बड़े ग्लेशियर्स के अंदर शामिल हैं। डेजर्ट्स, पाकिस्तान के अंदर सहरा कौन कौन से? 2 सहरा हैं पाकिस्तान के अंदर, एक पंजाब के अंदर है और एक सिंध के अंदर है। जो पंजाब के अंदर है उसे थल डेजर्ट कहते हैं। मियाँ वाली, खुशाब, जंग, भक्खर डिस्ट्रिक्ट्स, ये मेजर इलाके जो हैं ये थल डेजर्ट कहलाते हैं, जहाँ पे चने की बड़ी पैदावार होती है और ये अपनी पैदावार के हवाले से बड़ा मशहूर। भेड़ बकरियों पे गुजारा होता है जो थल के लोग हैं उनका, और जड़ी बूटियाँ वो खिलाते हैं वहाँ पे थल पे, और ये बड़ी गर्म होते हैं, रेत उड़ती है गर्मियों में, झक्खड़ चलते हैं, तो इस हवाले से वहाँ ज़िंदगी बड़ी जो है वो मसाइल का शिकार होती है गर्मियों में, जब सीज़न इस तरह का ड्राई सीज़न है। थाई डेजर्ट जो है ये सिंध में है, जिसमें मीरपुर, मथेलो, मिट्ठी, चोलिस्तान के इलाके शामिल हैं, और ये इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ है। इंडिया का जो इलाका है उसे जो है वो कुछ और कहते हैं, नाम अपना देते हैं वो उसका, और पाकिस्तान की साइड पे जो है उसे हम चोलिस्तान कहते हैं डेजर्ट जो है। तो इस तरह से 2 डेजर्ट पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर जो है वो थर है और पंजाब के अंदर थल है, ये कंफ्यूजन अक्सर हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट demography of Pakistan. I hope you understand very well, and if you have any question please comment below the video, and also subscribe the channel for more informative and educational videos. Thank you very much.